मेलोडीन होम स्टे यारकाट की वन ऑफ द बेस्ट केयर टेकर मिस अम्बुदा। हम लोग यारकाट पहुँचे थे मई के लास्ट वीक में और हमें केटर किया था मिस अम्बुदा ने, जो कि बहुत ही अच्छी केयर टेकर है। सारी नीड्स को हमारे इन्होंने बहुत ही मुस्कुराते हुए फुलफिल किया। हालांकि लैंग्वेज एक बैरियर था, इनको सिर्फ तमिल आती थी और हमें हिंदी और इंग्लिश जैसे तैसे टूटी फूटी लैंग्वेज में हम इनको समझाते थे और ये हमें समझाती थी। कहीं कुछ दिक्कत होती थी तो जो ओनर यहाँ नहीं रहते हैं उनको हम फ़ोन के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते थे और ये वो ओनर इन्हें हमारे नीड्स को कम्युनिकेट कर देते थे। ये बहुत ही स्माइलिंग नेचर की थी, सब चीज़ें बहुत अच्छे से इन्होंने हैंडल करी और हम इनकी सर्विसेज में बहुत खुश हुए। जब हमने मेलोडी इनको ऑनलाइन मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक किया था, हम थोड़े स्केप्टिकल थे क्योंकि ऑनलाइन पे लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ कुछ और दिखाती हैं फ़ोटो और पिक्चर्स के थ्रू और एक्चुअल में कहानी कुछ और होती है। लेकिन मेलोडी इन जिस तरह से लिस्टेड थी और अच्छे रिव्यूज़ थे, उसके हिसाब से ही हमने इसे पाया। नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी थी, वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन थे, साथ ही साथ रूम बहुत बड़ा स्पेशियस था, गीज़र फिटेड था बाथरूम में, 24/7 आपको गर्म वाटर की सप्लाई थी, साथ में फ्रिज था जो कि सरप्राइजिंग था, टीवी का कनेक्शन था जियो का, जो कि सब कुछ चैनल्स वगैरह आते थे। हम अपनी इस बुकिंग से बहुत खुश थे। 2 नाइट्स का हमारा स्टे बहुत ही कंफर्टेबल रहा, स्पेशली टू अम्बुदा and Mr. Murugesan, who is the owner of the property. Thank you, Murugesan, for providing such a good stay and a sweet room for us for our 2-night stay at your property. It was very memorable. Thank you very much. प्रॉपर्टी के करंट फोटोज़ मैंने इस वीडियो में शेयर करे हैं। इधर कमली ने हमें बताया है कि वो यहाँ की क्लीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती हैं, कमली मेस यानी कुकिंग का काम देखती हैं और मिस्टर सुंदर यहाँ के प्रॉपर्टी मैनेजर हैं। हालांकि फिजिकली हम बाकी के 2 लोगों से मिले नहीं थे, सिर्फ इनसे ही हमारी बातचीत हुई थी और इन्होंने हमारे सारे काम किए थे। Name? Amuda. Okay. அமுதா நீங்களே நான் வருவேன். அமுதா நீங்களே நான் வந்துருவேன். கமலி மெஸ். Okay. நான் இங்கே க்ளீன் பண்றேன். அமுதா. கமலி மெஸ் வச்சிக்கிறேன். குக்கிங். நாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, செஞ்சு கொடுத்தா எடுத்து வந்து கொடுப்போம். Thank you. TV. அதான் சார். This is a beautiful stay of Melodine. We have been allotted the top floor, which is second floor of this homestay property. One room is there, which is a suite room, and it's very large, spacious, neat and clean. They have very well maintained the property. It's very nice, and you can see lot of greenery around. You can see the jungle, so many big trees, full greenery it is. And right now the time is 4:30 in the evening. Compared to Bangalore, right now its temperature is quite less. I'm not feeling very hot here. So Yarkad stay is pleasant. Yeah, it's very good property, and at very good location. Roads are nice enough to reach, so reachability has no issues. You can reach easily. This Pakka tar road is here. It's a kind of a residential area, I think, because there are so many houses built around. Now at 4:30 now, the sky is getting casting a lot. Black clouds are there, and I think there'll be rain in the night or late in the evening. Hope so. So it will bring the temperature more down. Currently I'm not feeling very hot. Actually I'm not feeling at all hot. It's
it's still little breezy, so you feel nice actually. And as it is a top floor, so the view is nice, the weather is nice, and you are feeling the breeze. You will feel very good over here. So I recommend this property. Whoever planning to visit to Yarkad, if they want to stay in a quiet and nice place, hygiene and cleanliness is maintained in the property, and on request they are providing meals whenever you want. My stay booked with breakfast, so in my stay the breakfast is included, and if you want lunch and dinner you can request, so they will prepare the lunch and dinner, but you have to adhere the timeline strictly. They are having some meal time. I think you have to tell them about your meal requirements almost 4 hours before the meal preparation. That means if you need lunch, you have to tell them at least by 10 o'clock, 9:30 to 10 o'clock, so that you can get the lunch. And if you want dinner, you have to tell them around 3:30 or maximum by 4, so they can prepare dinner for you. It's a homestay. We just half an hour back checked in, so I don't know how is the food currently. I'll taste the food and then later on I'll add the review about the food also. But the property is great. I like it. It's a very nice property. I think you will also love it. Interiors are also good. It's a nice huge terrace veranda kind of thing because it is covered. Fans are also there. If you feel hot, you can switch on the fans. There are seating arrangements over here if you want to enjoy your meal. I think people can enjoy on this space. They lay down the tables and chairs and you can eat your breakfast, lunch and dinner here. For all the guests who are staying in the property, they are having ground floor, first floor and second floor occupancies are there in this property currently. I don't know right now how many rooms they are having each floor. In this terrace floor, I think they are having only one room, which is a suite room. Other than this top floor, first floor and ground floor also having rooms, but I don't know how many rooms each floor has. Only this top floor having only one room, so for us it's little bit of privacy is there, which is very nice. We are enjoying quite me time here. We only came for 2 nights and weather is beautiful, nature is at the best, and you can see here clouds and you can see and feel the sound of birds. I think tomorrow early morning it will be more wonderful. I'll wake up tomorrow early just to feel the morning here. How's the morning? How's the mornings feel here? Another morning from our homestay in Yarkad, Melody Inn. Today I woke up little early, though I woke up at around 6 o'clock today, but lying down on the bed.
Now it is 6:50. I came out. See how beautiful it is. Sun is playing hide and seek behind the cloud. सच में बहुत खूबसूरत सुबह है यारकाट की हमारे होम स्टे से। बर्ड्स की साउंड इतनी अच्छी लग रही है सुबह सुबह। हेलो डे यारकाट एक होम स्टे है, हम लोगों ने इसको मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक किया था। वैसे तो आप ऑनलाइन कोई भी प्रॉपर्टी बुक करो तो आप थोड़ा स्केप्टिकल रहते हैं, पता नहीं कैसी रहेगी, क्योंकि जो फ़ोटोज़ होते हैं कभी कभी जस्टिफाई नहीं करते एक्चुअल प्रॉपर्टी को। तो बहुत पहले नहीं जाते हैं, नई नई प्रॉपर्टी जब बनी होती है तो, और जब आप पहुँचते हो तो आपको पता होता है कि बहुत पुराना प्रॉपर्टी है, मेंटेन फोटोज़ वैसे नहीं है जैसे एक्चुअल प्रॉपर्टी अभी है। बट मेलोडी ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी और बहुत ही पीसफुल जगह पर है। बहुत ज़्यादा होटल्स नहीं हैं आसपास, होम स्टेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके घर हैं, रेसिडेंशियल एरिया है, बट उतना क्राउडेड रेसिडेंशियल एरिया नहीं है। जैसे हम लोग बैंगलोर से आते हैं, हमें पता है कि बैंगलोर में रेसिडेंशियल एरियाज कैसे होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की जैसे जगह जगह पे अपार्टमेंट्स घर भरे भरे होते हैं पूरे जगह को, और ग्रीनरी कम देखने को मिलती है। पर यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, आसपास जंगल दिखता है आपको, पूरे हरे भरे ग्रीन ट्रीज हैं। सुबह सुबह उठी, मेरा गला खुला नहीं है अभी। और यहाँ से सुबह बहुत खूबसूरत लगती है। और बेंगलोर में तो इस समय 35 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, और इवन 7 o'clock का सन भी बहुत ज़्यादा हार्श होता है, आपको इरिटेट करता है। मैं तो किचन में होती हूँ, मेरे यहाँ जब सन आता है 7 o'clock तो मैं उसी समय ब्लाइंड्स डाल देती हूँ किचन के, उससे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि पहन देखते कितनी सी हीट होती है, दूसरा सन की। लेकिन हाँ, अभी का सन टाइम लगा है 7:45, लेकिन मैं सन में खड़ी हूँ, देखिए कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे, उसकी धीमी और मीठी धूप लग रही है। यहाँ खड़े आप घंटों खड़े रहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो हम कल साइट सीइंग के लिए गए यहाँ पर, हम यहाँ से कम 11 बजे के करीब निकले और हम लोग 3, साढ़े 3, 4 बजे तक बाहर घूम रहे थे, तो हमें वो हीट उतनी नहीं लगी। तो मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का इस समय, मई एंड आज मई 29th में हमें चेकआउट करना है। हम लोग 27th को चेक इन किए थे यहाँ पर। तो वेदर बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं लगती, पंखे में आराम से काम चल जा रहा है। सुनहरी धूप है, खिली खिली सी बहुत अच्छी धूप है, प्रॉपर्टी बहुत वेरी वेल मेंटेन है। तो ये एक तरह का कंपाउंड है जिसमें 2-3 प्लॉट्स शायद अलॉट हुए हों, लोगों ने प्लॉट्स लिए और घर बना ली। मेरे ख्याल से एक आध घर में लोग रहते हैं, एक आध घर एज अ होम स्टे वो लोग रेंट आउट करते हैं। तो मेलोडी प्रॉपर्टी में एंटर होते ही पहला बिल्डिंग है जिसमें इन्होंने ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन किया है होम स्टे का। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे इनके 2 रूम्स हैं रेंट के लिए। हम लोगों को टेरेस का फ्लोर का रूम अलॉट हुआ है, इसमें एक रूम है जिसे ये लोग स्वीट रूम कहते हैं। तो हमारा रूम जो है वो बहुत स्पेशियस है, मुझे दूसरे फ्लोर्स के रूम्स के बारे में नहीं मालूम कि क्या अमेनिटीज़ है, क्या साइज़ है, बट हमारा रूम बहुत बड़ा है, स्पेशियस है, किंग साइज बेड है जिसका साइज़ बहुत अच्छा, फुल बेड है। हम लोग, मेरा बच्चा 13 साल का है, हस्बैंड वाइफ और मेरा 13 साल का बच्चा आराम से उस बेड पे सोए, हमें कोई कंजेस्टेड नहीं लगा, बहुत अच्छे से सोए हैं। वार्डरोब्स दे रखे हैं, टावर्स दे प्रोवाइड, कम से कम 2 टावर्स दिए हैं हम लोगों को, 2 मिनी सोप्स दिए गए हैं, एक डेंटल किट दी है। बाथरूम फिटेड विद गीज़र है, आप अभी गर्म पानी नहाने के लिए चाहिए तो 24/7 अवेलेबल है।
उसके अलावा हमारे रूम में फ्रिज है, जो मैंने पहली बार देखा, जो होटल्स में होता है, होम स्टेज में नहीं होता है, बट हमारे रूम में फ्रिज है, थैंक गॉड। क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा ठंडा, हालांकि मैं अपने घर में मटके का पानी पीती हूँ, फ्रिज का नहीं पीती, लेकिन पानी थोड़ा गर्म हो जाता है तो हल्का ठंडा करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ यहाँ पे, तो पानी हमारा ठंडा रहता है। क्योंकि उसको हम लोग बॉटल्स में भर के जब साइड सीइंग के लिए निकलते हैं तो हमें बॉटल्स में पानी ठंडा मिलता है, गर्म नहीं होता। तो वो एक बेनिफिट मुझे प्लस लगा, बहुत अच्छा लगा बल्कि मुझे। तो एक फ्रिज है जिसमें आप अपना एक वाटर बॉटल दे रखी है प्लास्टिक की। बाहर आपके रूम के बाहर में आरओ फिटेड है, जब भी आपको चाहिए तो आप अपना बॉटल में पानी भर लीजिए, उसको फ्रिज में रख लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए। इवन आप खाना प्रोवाइड करते हैं लोग, अगर आपने कुछ नहीं खाया बच गया और आप उसको बाद में कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि वो खराब ना हो। वॉट एवर इट इज, आप अपने पर्पस के लिए फ्रिज भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रिज हमने यूज़ किया थोड़ा बहुत पानी के लिए। नॉर्मली किसी भी होम स्टे में 2 बॉटल्स देते हैं, या होटल्स में 2 बॉटल्स देते हैं, 1 लीटर या आधे लीटर की। यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप दोबारा पानी मांगो, आपका जैसे ही पानी खत्म होता है आप आर से भरो, हो जाता है। तो जितना आपको चाहिए उतना आप पानी भर सकते हो आर से। और क्या है, हाँ वैनिटी मिरर है, वैनिटी मिरर है विद अ ड्रॉर। फिर टीवी है, चलता है, जियो कनेक्शन दे रखे हैं तो जियो का चलेगा। यूट्यूब अगर आपको चलाना है तो आपको अपने अकाउंट के थ्रू लॉग इन करना पड़ेगा। तो टीवी ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जियो कनेक्शन है तो उसकी लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही चलेगा। तमिलनाडु में तो तमिल के ही चैनल्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश के न्यूज़ भी देख सकते हो, मूवीज़ भी देख सकते हो, ड्रामास भी देख सकते हो, जो आपको देखना है देखो। खैर आप छुट्टियों में आते हो रिलैक्स होने के लिए, सिर्फ रात के टाइम टीवी खोलते हैं। जब आप थक हार के आते हो तो खाना खाने से पहले बस टीवी खोल देते हैं, वेट करते रहते, डिनर आता है, डिनर सर्व होता है, डिनर खाते हैं, उसके बाद हम लेट हो जाते हैं क्योंकि हम थके रहते हैं साइड सीइंग के बाद। इसके अलावा हाँ, जो ये प्रॉपर्टी है मेलोडी, वो यारकाट के ज़्यादातर साइट सीइंग लोकेशन से करीब है। यहाँ से यारकाट बोट हाउस यानी लेक हार्डली 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, 5 मिनट का ड्राइविंग टाइम है। उसके अलावा पीकू पार्क भी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा, 5-7 मिनट का ड्राइविंग टाइम है। पगोडा पॉइंट 15 मिनट का ड्राइविंग टाइम है। और उसके बाद स्काई पार्क, स्काई पार्क तो आप चाहें तो वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, बट बाई कार 5 मिनट का ड्राइविंग टाइम है, 2 किलोमीटर। उसके अलावा यहाँ पे एक अन्नामलाया टेम्पल है जिसका ड्राइविंग टाइम मुझे मैप पे 15 से 20 मिनट दिखा रहा था, और बहुत अच्छा साइट सीइंग व्यू पॉइंट बोला जाता है। उसके बाद के लिए वो वाटरफॉल्स भी यहाँ से ऑलमोस्ट 20-22 मिनट की ड्राइविंग टाइम पर है। हम लोग प्लान बना रहे थे कि लिए जाने का, बट मैंने रिव्यूज़ पढ़े रिसेंट के मार्च अप्रैल के, तो मुझे पता चला कि वहाँ पानी है नहीं, तो फॉल्स देखने को मिलेगा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ जाने का। हम लोगों ने स्किप किया। अन्नामलाया उस टाइम पे नहीं उठे हैं, फेमस है अपने सनराइज व्यू पॉइंट के लिए, तो उस टाइम पे हम लोग उठे ही नहीं कि हम लोग सनराइज व्यू कर सके वहाँ जाके, इसलिए हम लोगों ने उसको भी स्किप किया है। अगर आप टाइम से उठ जाते हैं और आप इंजॉय करना चाहते हैं तो एक अन्नामलाया टेम्पल है, आप उसे भी देख सकते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए खुलता है, फुल मून या नो मून डे पे, मुझे पक्का पता नहीं, मेरे को रिव्यूज़ में मैंने पढ़ा तो इसमें ये लिखा था। तो डेली नहीं ओपन होता है ये, किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे खोला जाता है। तो आप टेम्पल को बाहर से देख सकते हैं, बट कहता हूँ बहुत अच्छा है। रीचेबिलिटी कुछ दूर तक ठीक है, बट रोड्स बहुत नैरो है, और कुछ पर्टिकुलर एरिया में रोड थोड़े से खराब, आपको पैची रोड्स मिल सकते हैं। तो अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो थोड़ा सोच समझ के जाइएगा। हम लोगों ने उसको कभी स्किप किया है तो रह गया है वो।
यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद हम देखते हैं, हम लोगों ने अभी तक लेक विजिट नहीं किया। 9 o'clock लेक खुलता है, तो हो सकता है चेकआउट करके हम सीधे यारकाड बोट हाउस जाएंगे, थोड़ा बोटिंग करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम डायरेक्ट बेंगलोर के लिए निकल जाएंगे। तो ऑल इन ऑल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, नियरेस्ट टू मोस्ट ऑफ द व्यू पॉइंट्स है। मैंने आपको बता दिया, पीपू पार्क, यारकाड लेक, स्काई पार्क और पगोडा पॉइंट, ये सारी चीज़ें बहुत आसपास पड़ती हैं। और भी कोई चीज़ है जैसे लेडी सीट, जेंट्स सीट, चिल्ड्रन सीट, वो भी 10-15 मिनट की दूरी पर है। तो आप इस मेमोरी इन होम स्टे में बिल्कुल बेफिक्र होके कंसिडर कर सकते हैं। booking.com में मेकमाईट्रिप, पगोडा वगैरह पे ये लिस्टेड है, तो आप अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। ओनर बहुत अच्छे हैं, मिस्टर मुरुगेशन। दूसरा प्लस पॉइंट इसका ये है, केयर टेकर एक हमें जो मिली है, अम्बुदा नाम है शायद, मैं पक्का मेरे को नाम याद अच्छे से नहीं है, जो डेली हमें केटर कर रही हैं हमारे नीड्स को। हमारा ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, हमारा डिनर लेके आते हैं, कोई बात होती तो हमसे करते हैं। हालांकि वो हिंदी भी नहीं समझती, इंग्लिश भी नहीं समझती हैं वो, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में दिक्कत होता है, क्योंकि हमें हिंदी इंग्लिश ही आती है। तो हम लोग कभी कभी ओनर के थ्रू रूट आउट करते हैं। ओनर वो बोलते हैं मैसेज करके या कॉल करके, वो यहाँ नहीं रहते ओनर, तो वो हमारी बातें, हमारी रिक्वायरमेंट्स को कम्युनिकेट कर देते हैं तुम का। बट ऑल इन ऑल जिस हिसाब से वो बात करते हैं, एक तो स्माइलिंग फेस है, बहुत हंस के आपको केटर करेंगी, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करेंगे। मेरी बच्ची की तबीयत जिस दिन हम लोग आए थे, उस दिन रात को ख़राब हो गई थी, वो वॉमिटिंग आ रहा था, हम उस रात पूरा पूरा सो भी नहीं पाए थे, बहुत थके थे। नेक्स्ट डे हम लोगों को साइट सीन करना पड़ा, तो कल रात को और ज़्यादा थकान हो गई थी। तो कल रात को हम अच्छे से सोएंगे, सुबह जाके 6-7:30 बजे उठेंगे। कल हम लोग, कल तो मैं मेरे ख्याल से साइट सीइंग करके आने के बाद ही मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी 10 बजे, मैंने डिनर किया और उसके बाद मैं फिर सो गई। तो कल वो शाम को बल्कि हम लोग पूछ रहे थे कि उनके पास ORS का पैकेट अगर चाहिए तो बच्चे के लिए, तो मतलब केयरिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी केयर टेकर है। और सर्विस इंडस्ट्री जो होटल या होम स्टेज या गेस्ट हाउसेज होते हैं, ये पर्टिकुलरली उनकी सर्विसेज के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एक आध अमेनिटीज अगर कम होती हैं, अगर आप टावल नहीं दे रहे हो या टूथब्रश नहीं दे रहे हो तो चल जाए, लोग कभी कभी एडजस्ट कर लेते हैं। अगर सर्विस मेंबर्स जो हैं, जो आपके केयर टेकर्स हैं, जो आपकी टीम है, वो अगर अच्छी हुई तो, और ये टीम बहुत अच्छी है। हालांकि अमेनिटीज में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, सब कुछ आपको मिलता है। मैं वैसे कहने के लिए कह रही हूँ कि अगर कहीं कुछ कमी है भी, तो अगर अच्छा सर्विस स्टाफ है आपका, तो आप उस कमी को भूल जाते हैं। तो इनके पास तो बल्कि प्लस पॉइंट है, इनके पास ये सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, इनकी अमेनिटीज़ भी अच्छी है, इनकी लोकेशन भी अच्छी है, इनकी रीचेबिलिटी भी अच्छी है, रोड्स पूरी पक्की हैं। होम स्टे में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है, ना तो रोड्स पैची हैं, ना रोड्स बहुत ज़्यादा इंक्लाइनिंग या डिक्लाइनिंग है कि आपको ड्राइव करने में दिक्कत हो रही है स्टेशन पे होने के बावजूद। तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। तो जो केयर टेकर है वो बहुत केयरिंग है। टेरेस पे हमारा रूम है, तो वो बार बार ऊपर आ भी जाती हैं, खाना लेके आती हैं, रूम में बैठती हैं हमारे, बहुत अच्छे से बात करती हैं, पूछती हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते होते हैं। तो उनको तो दो थम्स अप है मेरी तरफ से। और बेस्ट ऑफ लक मैं उनको कहूँगी कि भगवान उनको, उनके परिवार को हंसता खेलता और खुशहाल हमेशा हमेशा रखे। और मिस्टर मुरुगेशन बहुत लकी हैं, क्योंकि अच्छा सर्विस स्टाफ मिलना भी अपने आप में बहुत किस्मत की बात होती है, और उनको इतना अच्छा सर्विस स्टाफ मिला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मिस्टर मुरुगेशन, थैंक्स फॉर ऑल योर सर्विसेज, and you are having such a beautiful homestay at such a nice location. We enjoyed our stay a lot. Thanks for allotting us the suite room at the terrace, which was very good and comfortable for our stay. And we are happy for your services. Whatever you provided is top notch, clean, hygienic, and
all the amenities are there, all the toiletry requirements are there, soaps are there, towels are there, dental kits have been provided, and plus point is the refrigerator in the room. So on holiday, 2 days holiday at Peo Homestay was very nice and okay. Thank you. Thanks. Friends, आप लोगों को कभी भी अगर एयरकार्ट का विजिट प्लान करना है और आपको नहीं पता कि कौन सी स्टेज को बुक करना है, या किसी का रेफरेंस नहीं है, या आपको नहीं पता कि ऑनलाइन जो बताया जा रहा है वो मिल रहा है कि नहीं, वॉट एवर ऑनलाइन यू आर एबल टू सी, यू विल गेट इट और नॉट. Mark my words, you will get it in Melody Homestay. It's a very good homestay. और आप आँख बंद करके, by closing your eyes, you can book Melody in Homestay. Very good homestay. और पार्किंग भी है, एम्पल पार्किंग है, कर सकते हो, पार्किंग का भी कोई दिक्कत नहीं है. सो पार्किंग इज प्रोवाइडेड, ब्रेकफास्ट कैन बी प्रोवाइडेड. ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी है. कल हम पहली बार ब्रेकफास्ट किया था, कल हमारा पहला ब्रेकफास्ट था जिसमें हमें वैरायटी मिली. एवरीथिंग इज वेरी गुड, देयर इज नथिंग टू बी कंप्लेंट ऑफ. एक आध टिप्स मैं जरूर बाद में रिव्यूज में अपने डाल सकती हूँ जो कि थोड़ी सी और इम्प्रूव कर सकते हैं सर्विसेज को, बट एज सच कोई कॉन्स नहीं है. मैं कॉन्स नहीं कहूँगी, एवरीथिंग इज प्लस, एवरीथिंग इज गुड. ओनली 1-2 टिप्स कैन, चीज़ें अगर आप ऐड कर लो ना तो आपका स्टे का जो फील है थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा. हालांकि आप स्टे फील ऑलरेडी यहाँ है, बट यहाँ हो जाएगा. तो सब कुछ बहुत अच्छा है. वेरी गुड. थैंक्स मिस्टर मुरुगेशन.